Good morning, my dear students. Today I am going to take English of class 10 from first flight. The topic is Madam Write the Verse. Already I have completed till part 4 of this lesson. Today I am going to continue part 5 of this lesson. And in the last lesson, part 4, we saw that how careful and painstaking journey this girl Wali was making, and she was resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and so many things, only to save a total of 60 paise for her journey. And that day she was at the village fair and she resisted her desire to go in the merry-go-round, and also she resisted her desire to have anything like ice cream, sweets, all those things. She resisted her desire only to have an excursion to the town by bus. She wanted to have a ride on the bus, and that's why she resisted her desire to have those sweets and other things a child has keen interest in having. So she managed to collect 60 paise, and then she set out for her journey. The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, and she was enjoying her journey. She could see the pedestrians crossing the road. She could see the beautiful scene on both sides of the road, and also while the bus was rolling on, she saw a young cow who was moving in front of the bus, and she clapped her hands with happiness when she saw the cow who was moving very fast in front of the bus. And she saw that the more the driver honked his horns, the more frightened the cow became. Somehow this was very funny to Wali. She went on laughing and laughing until her laughter broke into tears. And then she could see a glimpse of the railway lines running across the road, the railway crossing. And she was dumb with wonder when she gaped at everything, when she saw the malls, the street filled with people, crowded with people, and the shops, beautiful shops, decorated, the bright looking shops attracted her, and she saw the display of clothes, toys and other things in the shop. She was very delighted. And then she reached the bus stand in the town, and the conductor of the bus, who was a funny person, a very nice person, he wanted to give a treat to Wali, a cold drink treat, but Wali refused to have that treat. Then now it was time for Wali for her return journey. She was waiting in the bus for the driver to come and start the bus and leave for her village. Then after that what happens? We will see in the slides in this part 5 of this lesson. See this animated picture. So part 5 starts from here. This is 4th section of the lesson. Okay. Then what happened? You see, won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. So the bus didn't start yet, and the conductor asked
The conductor asked Wali, that little young girl, that if her mother would be looking for her. तो कंडक्टर वाली से पूछ बैठा, जब वापसी यात्रा करने वाली थी उससे पहले कंडक्टर उसको हाथ में टिकट थमाते हुए, रिटर्न जर्नी का टिकट थमाते हुए कंडक्टर पूछ बैठा वाली से कि क्या तुम्हारी मां तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी, तुम अकेली आई हो? नो नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। तब वाली बोली कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी मेरा राह नहीं देखता होगा, कोई मेरी चिंता नहीं करता होगा, मेरी फिक्र नहीं कर रहे होंगे, वो सब जानते हैं मैं कहां रहती हूं इस समय। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। और बस चालू हो गया, बस स्टार्ट हो गया और फिर वही सुंदर सा दृश्य था वाली के सामने, वंडरफुल साइट्स, विचित्र दृश्य फिर से देखने को मिला। वही दृश्य जो बस में गांव से शहर के लिए जब सफर करने के लिए गांव में बस में बैठी थी, रोड पर सड़क पर जब बस खड़ा हुआ, वही दृश्य इसको देखने को मिला वाली को। क्या दृश्य मिला, आइए देखते हैं। Wali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वाली बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी, थोड़ा भी बोर नहीं हुई थी और सबको वेलकम की, सब कोई को उसी प्रकार से वेलकम की। वही उसके मन में एक्साइटमेंट था, खुशी थी, खुशी की लहर थी। जब पहली बार वो बस में बैठी थी, उसके मन में जो खुशी की लहर थी, अभी रिटर्न जर्नी में भी वही खुशी की लहर उसकी आंखों में दिख रहे थे, उसके चेहरे पर झलक रहे थे वाली के। तो कितना सुंदर वर्णन किया है लेखक ने वाली के बारे में। ये छोटी सी 8 साल की बच्ची रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा में उसको वही खुशी का दृश्य देखने को मिलता है जो वो पहले देखी थी और वो बहुत ही खुश है कि अब वो वापस जा रही है अपने गांव। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक क्या हुआ, बस के वापसी यात्रा से, वापसी सफर से लौट रही थी, वापस बस शहर से गांव की ओर निकला था, रफ्तार में था और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा ये बस, वाली को एक वही छोटा सा जो गाय था जो पहले देखी थी, गांव से शहर आते हुए रास्ते में देखी थी और बहुत खिलखिलाकर हंसी थी और ताली भी बजाई थी, वही गाय मरी पड़ी थी। जिस गाय को पहले देखी थी वो गाय वहां रास्ते पर मरी पड़ी थी, रास्ते के साइड में, बाय द रोड साइड, रास्ते के किनारे में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और वही पड़ी हुई थी रोड साइड पर, जिस प्रकार की मान लो कि कोई फास्ट मूविंग तेज रफ्तार का बस या ट्रक धक्का मार दिया हो, तेजी से धक्का मार दिया हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट कर दिया कोई बस ने और इस गाय का डेथ हो गया था। ठीक है, एक्सीडेंट होने से कभी कभी कोई जानवर या किसी व्यक्ति का भी डेथ हो जाता है, तो यही एक्सीडेंट हुआ है। एक बस या ट्रक ने उस गाय को धक्का मार दिया था और धक्का लगने के कारण इस गाय का डेथ हो गया था। उस गाय को देखकर ये इसका मन दुखी हो जाता है वाली का। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो उस छोटी सी गाय को देखकर वापसी यात्रा में ये बहुत ही तिलमिला जाती है, क्योंकि गाय मरी पड़ी रहती है रोड साइड के बगल में, मतलब रोड के किनारे। और तब वाली पूछती है उस कंडक्टर से, क्या पूछती है, यह
क्या वह वही गाय है जो कि हम जब शहर का सफर कर रहे थे, एक गाय जो दौड़ रही थी इस बस के सामने, जो तेजी से भाग रही थी, क्या वही गाय है जो यहां मरी पड़ी है? कंडक्टर से पूछ बैठी वाली। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर बोला यस, नॉडेड मतलब बोला हाँ वही गाय है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और जब पता चला कि वही गाय है जो रोड साइड में मरी पड़ी है, किसी बस या ट्रक से उसको धक्का लग गया है, तो उसका मन दुखी हो जाता है, उसका मन दुख से भर जाता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। सारे जो खुशी होती है, खुशी की लहर होती है, वो बस वापस चल जाता है और वो खुशी का लहर उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है वाली के। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और वाली इस सीन को देखकर, इस ट्रेजिक इंसिडेंट को देखकर इसे बहुत दुख होता है। She becomes very disappointed and her heart is filled with sadness when she experiences that the same cow which she had saw while she was coming to the town had died. Her heart became sad, her mind became sad, she became sad. और वो सोचने लगी वाली कि इतने सुंदर, लवेबल, इतनी प्यारी सुंदर जंतु जो देखी थी, थोड़ी देर पहले देखी थी, जब कुछ देर पहले जब शहर की तरफ आ रही थी, वो अपना सुंदरता, वो जानवर अपना सुंदरता, अपना जिंदगी खो दिया है, और ये जानवर गाय अभी कितनी खतरनाक दिख रही है, हॉरिबल, बहुत ही हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग, और खतरनाक और डरावना ये गाय दिख रही है, जो गाय मर गई है, जो यहाँ पड़ी हुई है। उसका पैर पूरा स्प्रेड ईगल का मतलब स्प्रेड आउट, पूरा पैर फैल गया है, और फिक्स्ड स्टेयर, और गाय के आंख एकदम फिक्स्ड हो गए हैं, ऐसा करें आंख फिक्स्ड हो गए हैं जब मरी पड़ी है तो, और उसके आंख में कोई जान नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून ही खून बह रहे हैं उसके शरीर से। तो इस सीन को देखकर इसके गाय के बारे में सोचने लगी है छोटी सी बच्ची, और अपना दुख प्रकट करती है अपने मन से, और बहुत ही दुखी हो जाती है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ता गया, रफ्तार से सड़क पर चलता रहा। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और उस मरी हुई गाय के बारे में इसके दिमाग में वो छाप, मरी हुई गाय इसके दिमाग पर छाप छोड़ दी थी, और वही चीज जिसको बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, उस मरे हुए गाय के बारे में वाली के दिमाग में बार बार वही बात परेशान, वही सीन, वही दृश्य परेशान कर रहा था, और जिसको भूल नहीं पा रही थी। हॉन्टेड का मतलब होता है रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, बार बार उसके मन में वही ख्याल आ रहे थे मरे हुए गाय के बारे में, और जिसको भूलना मुश्किल था। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो खुशी था, जो खुशी की लहर दौड़ रहे थे उसके मन में, जो प्रसन्नता थी उसके मन में, वो सारे खत्म हो गए थे, पूरे डैम्पनिंग मतलब खत्म हो गए थे। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर झांकना नहीं चाहती थी, कोई दृश्य उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके गाय, उस मरे हुए
मरे हुए गाय की याद आ रही थी बार बार, वही दृश्य उसके दिमाग और नजर के सामने दौड़ रहे थे. She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. और चुपचाप अपने सीट पर वो बैठी रही, उस गाय के बारे में सोचती रही, अपने जो जगह है बैठने का वहां पर चिपके रही, वो बिल्कुल वहां से हिली डुली नहीं, जब तक बस उसके गांव में 3:40 तक पहुंचाने दिया. ठीक है, तो 3:40 पर उसे गांव में वो बस घुसा, और तब जब वो उतरने के लिए तैयार होती है तब तक वो हिली डुली नहीं थी, जब से वो मरे हुए गाय का सीन को देखी थी. ओके, शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. वो खड़ी हो गई अपने सीट पर, सीट से खड़ी हुई और स्ट्रेच किए, अपने हाथ पैर को सीधा किए, ऐसा करके स्ट्रेच नहीं करते हैं, उठते हैं तो बहुत देर बैठे रहते हैं. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी, कंडक्टर की तरफ घूमी और बोली, ठीक है सर, हाँ, आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी. ओके, तो कंडक्टर को बाय बाय बोलकर बस से उतर जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Four more slides are there to be discussed. Okay, madam, he answered her, smiling. और तब कंडक्टर जो बोलती है कि बाय बाय सर, मैं अब जा रही हूं, आशा करती हूं फिर मिलूंगी, तब कंडक्टर जवाब देते हैं, ठीक है मैडम. मुस्कुराते हुए कंडक्टर जवाब देता है वाली को, ठीक है मैडम. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. कंडक्टर बोल उठा, जब कभी भी तुम्हें मन करे बस पर सवार होकर जाने का, हाँ, बस पर सवार होकर घूमने का, तुरंत आ जाना और बस में सवार हो जाना, हम तुम्हारा साथ देंगे. कंडक्टर बोला. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. और साथ में एक चीज याद रखना, अपना किराया लाने मत भूलना, बस का किराया लाने मत भूलना. कंडक्टर बोल उठा उस लड़की से. शी laughed and jumped down from the bus. और वो मुस्कुराई, जोर से हंसी और बस से कूद पड़ी जहां उसका हॉल्ट आया. Then away she went, running straight for home. और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ी और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए गई. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. और जब वो अपने घर में घुसी तो देखी कि उसकी माँ नींद से जाग चुकी है. उसकी माँ नींद से जाग चुकी थी और उसकी माँ उसकी एक आंट से, उसकी एक पड़ोस में आंट है साउथ स्ट्रीट, हाँ, दक्षिण स्ट्रीट में उसका जो आंट रहती थी, वो आकर उसके माँ से बातचीत कर रही थी. तो इसी सीन को देखती है कि जब घर में घुसती है देखती है उसकी माँ जगी हुई है और उसके एक आंट से बात कर रही थी, उसके एक चाची से बात कर रही थी, जो कि पड़ोस वाली कोई आंटी होगी, चाची होगी. ठीक है. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. और ये जो आंट, ये जो चाची उसकी आई है, पड़ोस वाली चाची, एक चैटर बॉक्स है, बात करने, बहुत ही बातूनी है. चैटर बॉक्स किसको कहा जाता है? जो हमेशा बातचीत के सिवा कुछ नहीं करते, गपशप के सिवा हमेशा बातों में लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स. तो ये जो उसकी आंट थी, जो महिला आई थी, जो उसकी माँ से बात कर रही थी, वो एक चैटर बॉक्स थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. और वो इसकी आंट, जो पड़ोस वाली जो आंट थी, उनका स्वभाव कैसा था? अगर वो एक बार मुंह खोल देती थी बात करने के लिए तो उनका मुंह कभी बंद नहीं होता था. एक बार शुरू हो जाती थी तो खत्म नहीं होती थी. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. And where have you been? Said her aunt.
When वाली came in, जब वाली अंदर आई तो वाली को देखकर उसकी वो चाची जो थी, पड़ोस वाली चाची, वो पूछ बैठी वाली से कि वाली तुम इतने देर कहाँ थी, कहाँ गई थी और तुम कहाँ थी इतने देर से? She spoke very casually, not expecting a reply. और वाली कैजुअली बात करती है, जैसे यूजुअली कभी भी जिस प्रकार से जनरल टॉक्स करती है वैसे ही वो बात कर रही है, ठीक है, और कुछ बोलना नहीं चाहिए. She spoke very casually, not expecting a reply. उसका जवाब देना नहीं चाहिए, मतलब जो सच में वो कहाँ गई, जहाँ गई थी वो बताना ही नहीं चाहिए, वो कैजुअल में बात करती है वाली. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो वाली सिर्फ मुस्कुराई और उसकी माँ और उसकी आंट अपने फिर बातों में वो लोग व्यस्त हो गए, अपने बातचीत में, गपशप में. ओके. Yes, you are right, her mother said. उसकी माँ बोली उसकी आंट से, हाँ आप सही कह रही हो. So many things in our midst and in the world outside. कितने घटनाएं घटते हैं, हाँ, इस विश्व में, हाँ, आउटसाइड, हमारे घर से बाहर, इस संसार में, इस दुनिया में कितने सारे घटनाएं घटते हैं जिसके बारे में पता नहीं चलता है. उसकी माँ बोली, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. हमें जो दुनिया में जो घटनाएं घट रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं जहां तहां, इसके बारे में हमें कहां से पता चलेगा. इसकी माँ इसके आंट को बोलती है, वाली की माँ उसके आंट से कह रही है, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी. तब उसकी माँ बोलती है फिर उसकी आंट से कि और अगर कभी पता चल जाता है कोई घटना के बारे में, कोई चीज के बारे में, कोई खबर के बारे में जो विश्व में घट रहा है, अगल बगल घट रहा है, शहर में घट रहा है, गांव में घट रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है पूरी तरह से. क्या हम लोग समझ में आता है पूरी बातों को? उसकी माँ पूछ रही है उसकी आंट से. आगे बढ़ते हैं. ओह यस, वाली. तभी वाली बोल उठी, हाँ ओ यस, हाँ सही कर रहे हैं माँ, तुम सही कर रही हो. वॉट आस्क्ड हर मदर. उसकी माँ फिर पूछी, क्या, तुम क्या बोली? तुम हमारी बातों को सुन रही हो? तुमको सारे चीज समझ में आ रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं? इसके कहने का मतलब यह था. व्हाट्स दैट यू से. उसकी माँ बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? वाली से पूछ बैठी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम हम लोग की बातों को सुन रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहती हो? ओ सेड वाली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. तब वाली बोल उठी अपनी माँ से, ओह हाँ, मैं आपसे सहमत हूं. अपनी माँ से बोली, मैं आपकी बातों से सहमत हो रही थी, जो आप बात कर रही थी कि क्या क्या घटनाएं घट रहे हैं इस दुनिया में और उसके बारे में हमें पता नहीं है. हमारे जानकारी के बिना जो घटनाएं घट रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, उस बात पर मैं आपकी बात से सहमत हूं. अपनी माँ से कहती है. नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन. ओके. Just a cheat of a girl, she said her aunt. और उसकी आंट जो चाची जो आई थी, पड़ोस वाली चाची जो उसकी माँ से बात कर रही थी, वो बोल उठी, ये लड़की जो है एक चीट ऑफ ए गर्ल है. चीट ऑफ ए गर्ल मतलब इसको लोगों का बातें सुनना अच्छा लगता है, लोगों का बातों के बीच में पढ़ने का इसका आदत है, तुम्हारी बेटी का. उसका बोली, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन. और वो आंट बोलती है, और देखो वाली की माँ, तुम्हारी बेटी वाली जो है कितनी अच्छा से अपने नाक घुसा देती है हमारे बातचीत में, मतलब हमारे बातचीत में किस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है, बीच में आ जा रही है, बीच में पड़ जा रही है हमारे बातों के बीच में, हम लोगों के बातों के बीच में. जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी. जैसे लगता है ऐसे हम लोगों की बातों में तुम्हारी बेटी वाली पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई
कोई ग्रोन अप लेडी है, कोई महिला बात कर रही है। वाली स्माइल टू हरसेल्फ, और अपने आप पर वाली मुस्कुराती है। पोक सर नोज का मतलब है टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर। और वाली मुस्कुराती है तो वाली भी वहां इंटरेस्ट ले लेती है, अपना दिलचस्पी ले लेती है उनकी बातों में। उसके माँ और उसके आंट जो बातें कर रहे हैं उसको ध्यान से पूरा सुनती है और उसके बातों से सहमति होती है, असहमत होती है, मतलब सहमत होती है। ओके, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वाली चाहती है कि जो जिस कारण वो मुस्कुरा रही है, शहर का सफर, गांव से शहर का जो सफर की है और उसका सफर जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वाली मुस्कुरा रही है। और वो नहीं चाहती है कि उसकी मुस्कुराहट के बारे में दूसरा कोई जान सके, उसके माँ या चाची जान सके। वो रिवील नहीं करना चाहती थी उस सीक्रेट को, उस गुप्त बात को बताना नहीं चाहती थी जब वो बस में सवार होकर शहर को गई थी। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। और लेखक कह रहा है कि अब उसका कोई चांस भी नहीं था वैसा कुछ जानने का कि लोगों को उसके सफर के बारे में, उसके उस गुप्त शहर का सफर के बारे में किसी को मालूम पड़ सके। वाज देयर, क्या कोई चांस था जानने का? नहीं था, क्योंकि इतने प्लान तरीके से वाली उस सफर का, उस शहर का सफर का अंजाम दी थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेसन एंड ऑल्सो the end of this lesson. Madam rides the bus, and I will come with multiple choice questions in the next class. Thank you.